Hello students, good morning. So in previous class we mainly discuss about the friction. Okay, so let's take a short discussion about that we discussed in your previous class. So mainly in previous class we say what is friction. So friction means we can say that is the opposing force that starts when a body is in motion. Okay, that means we can say when a body moves along any path, then the opposite force exerted by the path on the body is called friction. Okay, means that is the opposite action of the motion. Okay, and in the previous class also we discussed the various type of friction. Along with we discussed the limiting friction value. So limiting friction means that is the maximum value of static friction after which the body starts to move. Okay, maximum value by friction maximum value jete jaye body ta rest rohuchi seta ko ame kahuche limiting friction ba static friction. যেতବେଳେ আমার আপ্লাইড ফোর্স স্ট্যাটিক ফ্রিকশন বা লিমিটিং ফ্রিকশন টু অধিক আসব তাহলে যাই সে বডিটা কোণ করব না মোশন কু আসব বুঝিলা পিলে তা সহ আমি ডিসকসন করলে হোয়াট ইজ দ্য কোফিসিয়েন্ট অফ ফ্রিকশন এন্ড উই ফাইন্ড দ্য ভ্যালু অফ কোফিসিয়েন্ট অফ ফ্রিকশন ইজ দ্য ভেরিয়েশন অফ লিমিটিং ফ্রিকশন টু দ্য নর্মাল রিঅ্যাকশন ওকে দ্যাট উই টেক এ সিম্বল দ্যাট ইজ মিউ that mu equal to limiting friction divided by normal reaction from which we measured static limiting friction or coefficient of static friction that is Fs divided by R, coefficient of kinetic friction that is Fk divided by R. Okay, so now in this lecture we mainly discuss on angle of friction. Okay, angle of friction, angle of repose. Okay, and we also discuss some problems basing on these two conditions. Okay, so first thing let's measure what is the angle of friction. Okay, so when we take any horizontal surface and we place a body on that surface, okay, and when the body is at rest we find there will be two equilibrium force acting on the body that is its weight mg that acts vertically downward and normal reaction that is r. Okay, so as r equal to mg, so that's why the body becomes rest on that horizontal surface. Okay, suppose we take an applied force F. Okay, we make an applied force suppose F such that for that applied force the body starts to move. Okay, suppose that is the capital F, my applied force. Okay, and because of that applied force when the body starts to move there will be action of limiting friction or there will be a frictional force. Okay, and frictional force is opposite to the motion of the body. Okay, and angle of repose, sorry, angle of friction okay, angle of friction that is a measurement of angle between normal reaction. Okay, it is a measurement of angle between normal reaction and resultant of the limiting friction. Okay, suppose this one is the resultant value of the limiting friction and angle between the normal reaction and the resultant direction, resultant limiting friction, suppose I take theta. Okay, so generally when we measure the angle of friction we mainly discuss it is the angle between normal reaction to the frictional force or resultant frictional force. Okay, suppose this one is the resultant frictional force and this one is the normal reaction, and angle between the normal reaction and resultant frictional force is called angle of friction. Okay, so let's measure this value angle of friction. Okay, so in order to measure the angle of friction, suppose we take a calculation like
that we take in the vector form. Okay, suppose I take this line and draw a corresponding vertical line. Okay, so this will indicate there will be a parallelogram. Okay, so in that parallelogram from, if this one is angle theta and if I take this value is f, that's similar to this one. Okay, this value f is similar to this one and this is my normal reaction. Okay, so now we get a triangle like this. Okay, this one is r, this one is f and this angle is theta. Okay, and this one is 90 degree. Okay, so you know that is a corresponds to triangular vector addition type equation, and when we measure by taking trigonometric function of the angle, okay, tangential component of the angle tan theta, so tan theta that will corresponds to p by b, tan theta equals to p by b. So as this angle is 90, so there will be value of h, this one. Okay, as angle is associated with this line, so this is my base value and this is perpendicular. Okay, so tan theta that equals to perpendicular component divided by base component. So what will be the value? Tan theta that equals to p divided by b, or we can say that is f divided by r. Okay, f divided by r, that is the force of friction divided by normal reaction. Okay, force of friction divided by normal reaction we have already discussed in the previous class, that is coefficient of friction. Coefficient of friction mu equal to f divided by r, f divided by r. Okay, so if we compare these two relations, okay, so if we compare, this one is suppose equation 1, this one is equation 2, and if we compare these two equation, we mainly find that mu equals to tan theta. Mu equals to tan theta. So that means we can say the coefficient of friction, coefficient of friction is the tangential component of angle between normal reaction and resultant frictional force. Okay, so that is mu equal to tan theta. Understand? देखिए यहाँ पर हमें गोटे दिरा प्रॉब्लम्स करिवा. And one thing, if you have to calculate in the term theta, when you have to calculate the term theta, we find mu equal to, that is tan theta, mu equal to tan theta, and if mu is given, suppose coefficient friction is given and you have to find the angle of friction. So in such case we can take the inverse relation, that theta equal to tan inverse mu. Theta equal to tan inverse mu, that is the inverse relation between angle of friction and the coefficient of friction. Okay, so one question is given like, calculate the acceleration of the system of mass and tension in the string. Okay, the coefficient of friction between 4 kg mass and the surface is 0.2. Coefficient of friction is given, that is 0.2. Coefficient of friction is 0.2 and the mass of the body, okay, mass of the body is given as 4 kg. Mass of the body is given as 4 kg and we have to calculate acceleration and tension. Okay, acceleration and tension, ये दुईटार वैल्यू आम कैलकुलेट करवा. ओके, देख पिले जेहेतु कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वैल्यू देइछि 0.2, समस्ते जानिछ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रे यूनिट एक्जिस्ट करे नाही, काहे कि हमें ताको फोर्स डिवाइडेड बाय नॉर्मल रिएक्शन जेहेतु करूचे, फोर्स रे यूनिट भी न्यूटन, नॉर्मल रिएक्शन लो भी यूनिट रहूचे न्यूटन, तेणु कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लो यूनिट एक्जिस्ट करे नाही. ओके, सो दैट वैल्यू इक्वल्स टू 1/5.
Okay, so 0.2 that equals to 1 by 5. So what is the value of G? Value of G is 9.8. Suppose we take as 10, nearly equal to 10 value, 10 meter per second square. Okay, so we have to calculate first thing, as the given term is coefficient of friction. So let's measure what is the normal reaction, because we know normal reaction R equal to mg. R equals to mg. Okay, so let's calculate R. So mu equal to F divided by R. Mu equal to F divided by R. So that's why we can calculate here F equal to mu R. Okay, F equal to mu R. Okay, so this one is given, that is W given in kg weight. This one is given in kg weight. Okay, so R equal to W equal to mg. Okay, so R equal to W equal to mg. So that means we can say this value equal to R. So F equal to mu, that is 1 by 5 into value of R, that is 4. So that equal to 4 by 5. 4 by 5 Newton. Okay, so value of that frictional force, that is okay, so F equal to, that is 4 by 5 Newton. Okay, so let's measure what is the value of tension. So in order to calculate the value of tension, we can use the relation that already we have taken, that equals to, so this relation is already given to you, that 6g minus T1 equals to 6a. Okay, g is the acceleration due to gravity, a is the acceleration of the body. So that's why the value will be 6g. So what is the value? 0 value is 10. So that is 60 minus T1 equal to 6a. Okay, so that implies to 60. Suppose I take this one as equation 1. The second relation is T1 minus F equal to 4a. T1 minus F equal to 4a. That relation is corresponding value when the body is moving. Okay, so when the body is moving, we can say, already we have taken the resultant force when that we take downward, or resultant force when we take upward direction. So value will be corresponding like this. Okay, so that implies to T1 minus, what is the value of F? So value of F is 4 by 5 equal to 4a. Suppose I take this one as equation 2. Okay, so if we add equation 1 and 2, okay, so when we add equation 1 and 2, so what will be the value? 60 minus 4 by 5 equal to 10a. So by calculating, you can find here value of a. Okay, second thing, T1 you have to calculate. You have to calculate T1. So what will be the value of T1? Choose any one relation. Okay, choose any one relation from either equation 1 or equation 2. Okay, so here we will find the value of a. Then to take any one relation, either equation 1 or equation 2, so that equals to, suppose I take equation 1 equal to 6a minus T1, 6g minus T1 equal to 6a. So that implies to T1 equal to 6g minus 6a. Okay, so that equals to T1 equals to 60 minus, put the value of a that we find here.
Okay, so when the put a value of a, so that will corresponds to value of t1. Okay, then let's measure angle of repose. Okay, angle of repose. Okay, so now to study the angle of repose, first suppose we take a consideration like, suppose this one is an inclined surface. Okay, this one is an inclined surface. Okay, suppose I put any body on that inclined surface. Okay, what happens? Suppose we place a body on the inclined surface, then it slides on that surface. जदि आम गोटे कौन से ऑब्जेक्ट को गोटे इनक्लाइन सरफेस रे आम प्लेस करूचे ताल से बॉडीटा कौन हो जाउची, से बॉडीटी आमर मूविंग स्टार्ट करूची. ओके, तेल मोशन स्टार्ट करूची तामाने आम से केस रे कहि परिबा जो रिजल्टेंट फ्रिक्शन लो वैल्यू, रिजल्टेंट फ्रिक्शन लो वैल्यू जो अप्लाइड फोर्स अपेक्षा कौन आसूची ना लार्ज आसूची. जेहेतु रिजल्टेंट फोर्स रो वैल्यू एक्सट्रीमली लार्ज आसूची तेणु से ऑब्जेक्ट कौन होची ना गोटे इनक्लाइंड सरफेस रे मोशन स्टार्ट करूची. ओके, सो एंगल ऑफ रिपोज गिव्स द वेरिएशन ऑफ the angle between a horizontal surface and an inclined plane. देखो पहले कहा भीतर से रिलेशन दउची गोटे हॉरिजॉन्टल सरफेस आ गोटे इंक्लाइंड प्लेन भीतर रिलेशन को ही मेजर करूची. ओके, सपोज दिस वन इज माय हॉरिजॉन्टल सरफेस, this one is horizontal surface and this one is inclined plane. Okay, so the angle between horizontal surface and inclined plane is known as angle of repose. Okay, and because of that angle a body always slide on the horizontal inclined plane. Okay, जो angle of repose पाई ऑब्जेक्ट कौन हुए ना से inclined plane ऊपर कौन हो जाए ना स्लाइड हो जाए. ओके, मानकर से inclined plane ऊपर ये टाइप रे गोटे ऑब्जेक्ट को रखिबा ताल से कौन हबो ना स्लाइड करिवो से प्लेन ऊपर. ओके, ताले जो स्लाइडिंग ऑफ ए बॉडी इन एन इंक्लाइंड प्लेन कहा ऊपर डिपेंड करूची ना द एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड इंक्लाइंड प्लेन. ओके, सपोज इन ऑर्डर टू मेजर दैट इंक्लाइंड angle or angle of repose, suppose I place an object on that inclined plane. Okay, suppose a body of mass m is placed in that inclined plane and first we consider the body is remains equilibrium. Okay, and when the body is equilibrium means we can say the corresponding or the resultant force on the body is 0. जदि मोर बॉडीटा से हॉरिजॉन्टल प्लेन रे इक्विलिब्रियम रे अछि ताहले तापर जो रिजल्टेंट फोर्स आसीबो ऑल द फोर्स तार वैल्यू केते आसी जिवो 0 आसीबो. ओके, जे तमे ताको इंक्लाइंड प्लेन ऊपर रखिचे नॉर्मल रिएक्शन रो डायरेक्शन कोन ना नॉर्मल रिएक्शन इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड इट इज वर्टिकली आउटवर्ड. नॉर्मल रिएक्शन कोन रहिबो ना से सरफेस को परपेंडिकुलर रहिबो आ से सरफेस रो वर्टिकली आउटवर्ड, सो दैट विल बी द नॉर्मल रिएक्शन फॉर दैट ऑब्जेक्ट. बट वेट कोड आसीबो जदि हम वेट रो वैल्यू को मेजर करबा तम को जो जदि ऑब्जेक्ट रो मास अछि m ताले जो वेट आसीबो करेस्पोंडिंग वेट दैट इज वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड. सो सपोज दिस वन इज द direction of the weight of the object. Okay, and suppose we take the opposite moment of the normal reaction and this angle is alpha. Okay, and we know as per the vector resolution method, if I take mg as a resultant vector and we draw a perpendicular line, suppose this one is a perpendicular line in between these two variations. Okay, and if we convert it in terms of resultant vector, so what is the corresponding term? If this one is mg, so this will be mg
cos alpha, that is the cosine component of the resultant vector. ओके जेहेतु ता सहित एंगल एसोसिएट अच्छी तेणु तार जो कंपोनेंट आसो कोसाइन कंपोनेंट रे. ओके वेक्टर एनालिसिस ऑलरेडी आपको डिस्कशन करा जायछि. जदि एटा हम mg नौचे तार जो अपोजिट कंपोनेंट आसीबो केते ना mg sin थीटा, mg sin थीटा. ताले देखो पिले कोन पाइलो ना mg cos alpha, सॉरी हियर दैट इज अल्फा, mg cos alpha इक्वल टू mg, दिस वन इज mg sin alpha. बट आम कंडीशन कौन कहूचे जदि मोर से हॉरिजॉन्टल सरफेस रे ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम अच्छी ता माने जो ऑब्जेक्ट ऊपर रिजल्टेंट फोर्स कौन आसुची 0. जदि मोर रिजल्टेंट फोर्स आसुची 0 ताले एठी हम गोटे रिलेशन फर्स्ट ऑब्टेन करूचे. जो फर्स्ट रिलेशन दैट इक्वल्स टू r इक्वल टू mg cos alpha, r इक्वल टू mg cos alpha. कहीं हम कहे r रहिला मोर वर्टिकली बा दैट इज परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस, तार अपोजिट रे को वेक्टर एग्जिस्ट करूची दैट इज mg cos alpha. तार अपोजिट रे जो वेक्टरटा एग्जिस्ट करूची सेटा कहार कंपोनेंट, वेट रो कंपोनेंट. वेट रो कंपोनेंट पाइले अलोंग द हॉरिजॉन्टल दैट इज mg cos alpha. जब हम कहूचे या पर रिजल्टेंट फोर्स 0 अछि तले r इक्वल टू केते फर्स्ट पाइले mg cos alpha. किंतु एठी आउ गुटे हम वेक्टर पाउचे बा आउ गुटे फोर्स रो डायरेक्शन अछि जोटा कि mg sin alpha. ओके जोटा कि इनक्लाइंड सरफेस रो डाउनवर्ड डायरेक्शन ले एग्जिस्ट करूची, जोटा कि एते कैंसल हेई नै कोनोसी फोर्स द्वारा. ओके जोटा कि मोर टर्मटा कोन अछि ना एग्जिस्ट करूची. किंतु जेते हम कहूचे ऑब्जेक्ट से इनक्लाइंड सरफेस रे रेस्ट अछि. ओके ता माने से ता ऊपर जो गोटे फोर्स एक्ट करछ जेटा हम कहूचे स्टैटिक फ्रिक्शन. ओके जेतो ऑब्जेक्ट इनक्लाइंड प्लेन रे रेस्ट अछि ताले हम ता कहूचे ता ऊपर कोन एक्ट करूची स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करूची. से स्टैटिक फ्रिक्शन रो डायरेक्शन कोआडे आसीबो. ओके जदि हम ऑब्जेक्ट ऊपर स्लाइड अमाउंट रो फोर्स भी अप्लाई करबा. ओके बा ऑब्जेक्ट जदि मोर मोशन को आसीबो ताले देखो से कोआडे मोशन करिवो टुवर्ड्स द डाउनवर्ड ऑफ द हॉरिजॉन्टल प्लेन. जदि हम ऑब्जेक्टर मोशन को स्टडी करबा से ऑब्जेक्ट कुआडे मोशन करिवो से हॉरिजॉन्टल प्लेन रो डाउनवर्ड डायरेक्शन ले मूवमेंट करिवो. ओके ताले जदि डाउनवर्ड डायरेक्शन ले मूवमेंट करूची आमे कहू जे फ्रिक्शन लो जो डायरेक्शन रहूची सेटा रहिबो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन. ताहाले जो स्टैटिक फ्रिक्शन लो जो डायरेक्शन आसीबो तारा कोन रहिबो ना अपवर्ड डायरेक्शन इन दैट इनक्लाइंड प्लेन. से इनक्लाइंड प्लेन रो अपवर्ड डायरेक्शन ले एग्जिस्ट करिवो. बुझियला जेतु मोर ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम अछि ता माने मोर फर्स्ट थिंग हे गला r इक्वल टू mg cos alpha. सेकंड थिंग जो mg sin alpha कंपोनेंट अछि से mg sin alpha रो कंपोनेंट ता कहा सहित बैलेंस हे गला बिले f इक्वल टू mg sin alpha. भले से देखो इक्वेशन को एबे हम कहूचे जे ऑब्जेक्ट जो r इक्वल टू केते पाइलो mg cos alpha. सेकंड रिलेशन पाइले f दैट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू mg sin alpha. जदि ऑल द रिलेशन इक्वल हो जाउची त माने रिजल्टेंट फोर्स ता ऊपर केते हे गला 0 हे गला. माने करे ई दुटा एंगल को हम डिवाइड कर दबा, ई दुटा इक्वेशन को डिवाइड कर दियो. डिवाइड कर देले केते पाइबो बिले. So that is suppose equation 2 divided by equation 1 नेबी. equation 2 divided by equation 1. चल से केस रे हम कौन मेजर कर ले f divided by r equal to mg sin alpha divided by mg cos alpha. बुझियला पिले ना बुझियलानी ताहले सो दैट इम्प्लाइज टू mg कैंसल हो गला. ताले पाइलो तुम tan alpha इक्वल टू f बाई r. tan alpha इक्वल टू f बाई r. ओके देखो पहले पाइलो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन कहार रेशियो आसुची फोर्स ऑफ फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन. जेतु रिलेशन आसुची फोर्स ऑफ फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन तार वैल्यू का हमें कहूचे कौन ना दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. ओके सो वी कैन राइट हियर एज mu इक्वल टू f बाई r, mu इक्वल टू f बाई r. सो what will be the corresponding value? So tan alpha equal to mu. tan alpha रो वैल्यू केते हे जिवो mu हे जिवो. So that implies to alpha equal to tan inverse mu.
अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स म्यू बा तुम इक्वेशन को मन रखि पारिबो दैट इज इक्वेशन 1 दैट इज इक्वेशन और इक्वेशन 3 दैट इज इक्वेशन 4 equation 3 and equation 4. So this will give a relation of angle of repose. So what is angle of repose? Angle of repose is the angle that makes a horizontal surface with the inclined plane. Horizontal surface inclined plane सहित जत्ते एंगल करूचे सेटा को हमें कहूचे angle of repose. Okay, so angle of repose or tangential component of angle of repose depends upon the coefficient of friction. Okay, तबे देखो पिले जदि हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन आ एंगल ऑफ रिपोज ऊपर रिलेशन स्टडी करबा एंगल ऑफ फ्रिक्शन टा को हमें केते मेजर करले एंगल ऑफ फ्रिक्शन रो वैल्यू हमें पाइले tan थीटा इक्वल टू म्यू रिलेशन ड्रॉ करबा सो रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज ऊपर मेजर करिया व्हाट इज द रिलेशन ओके सो फर्स्ट थिंग इफ वी टेक एंगल ऑफ फ्रिक्शन that is tan theta equal to mu ओके एंगल ऑफ फ्रिक्शन में कौन पाइले tan थीटा इक्वल टू म्यू एंगल ऑफ रेपोज रे केते पाइले एंगल ऑफ रेपोज दैट इज tan अल्फा इक्वल टू म्यू tan अल्फा इक्वल्स टू म्यू ओके देखो पहले जब ये दुटा इक्वेशन को हमें इक्वल कर दबा बा दुटा रिलेशन को जब कंपेयर करिबा ताले tan अल्फा इक्वल टू केते पाइला पिले ना tan अल्फा इक्वल टू tan थीटा सो दैट इंप्लाइज टू केते हो गला पिले थीटा इक्वल्स टू अल्फा सो एंगल ऑफ रेपोज इज इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंगल ऑफ रेपोज टा कहा सहित समान ना एंगल ऑफ फ्रिक्शन सहित समान आसीबो बुझेला ना बुझेलानी सो एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ रेपोज देखो पिला में जो कंडीशन टा बाहर कले से इनक्लाइन सरफेस रे ऑब्जेक्ट टा को इक्विलिब्रियम कंडीशन रे रखितिले इनक्लाइन सरफेस रे ऑब्जेक्ट हमर इक्विलिब्रियम रे अछि किंतु जदि हम ऑब्जेक्ट को इनक्लाइन सरफेस रे मोशन को आनिबा जदि से ऑब्जेक्ट को से इनक्लाइन सरफेस रे मोशन को आनिबा से केस रे हमर इक्वेशन टा को टाइप रे चेंजेस आसीबो ओके एंगल ऑफ रेपोज केस रे जो हमें ऑब्जेक्ट को नेले से इनक्लाइन प्लेन रे इक्विलिब्रियम कंडीशन ले अछि इक्विलिब्रियम कंडीशन माने ता ऊपर रिजल्टेंट फोर्स 0 नै कि बाहर करले एबे मेजर करबा कोन जदि से ऑब्जेक्ट टा से इनक्लाइन सरफेस से स्लाइड होउची बा इनक्लाइन सरफेस से मोशन कहउची ताले सेते बेले तार एक्सेलरेशन केते आसीबो बा तार वेलोसिटी केते आसीबो जतबे से टच करबा आसी तुमको हॉरिजॉन्टल सरफेस रे सेते बेले तार वेलोसिटी केते होबो ओके डिफरेंट कंपोनेंट्स मेजर करबा सो लेट्स टेक मोशन ऑफ ए बॉडी इन एन inclined surface okay motion of a body in an inclined surface motion of a body in an inclined surface in downward direction ओके ताले एटा स्टडी करिया पई हमें से फिगर को आसीबा पुनी जो फिगर हमें कहिथिले जो इनक्लाइंड सरफेस आउ हॉरिजॉन्टल प्लेन okay suppose this one is an inclined surface and this one is my horizontal plane okay inclined surface और horizontal plane भीतर हम एंगल केते नेले अल्फा and that alpha is equal to angle of friction theta okay जद हम कहू ऑब्जेक्ट कोन अछि मोशन रे अछि को सरफेस रे
इनक्लाइंड सरफेस रे ता माने तार जो रिजल्टेंट फोर्स आसीबो से रिजल्टेंट फोर्स मैक्सिमम को डायरेक्शन ले आसीबो ना डेफिनेटली डाउनवर्ड डायरेक्शन ले आसीबो जे कोनोसी पिला कहि परिबो जेहेतु ऑब्जेक्ट मोशन करछि मोर डाउनवर्ड डायरेक्शन रे ता माने एटी लिमिटिंग फ्रिक्शन को हमर अप्लाइड फोर्स एग्जिस्ट करूछि ओके जेहेतु लिमिटिंग फ्रिक्शन को अप्लाइड फोर्स एग्जिस्ट करूछि ता माने से ऑब्जेक्ट स्लाइड करिवो इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन ओके ताले वेरियस फैक्टर्स कोन आसीबो देखिबा सपोज दिस वन इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m ये ऑब्जेक्ट रो मास केते अछि m अछि ताले वेट कोआडे आसीबो वेट आसिला हमर वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन दैट इक्वल्स टू mg ओके नॉर्मल डायरेक्शन कोन आसिला बिले ना नॉर्मल डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर दैट सरफेस दैट इक्वल्स टू r ओके सपोज r ऑपोजिट रे गोटे लाइन्स ड्रा करो आर अपोजिट में लाइन्स गोटे ड्र कले जोटा एंगल क्रिएट करुच्ची वेट आउ का भितर वेट आउ से अपोजिट टू द नॉर्मल डायरेक्शन रो वेक्टर भितर ओके अल्फा कहा सहित समान बिले आम एबे मेजर कले अल्फा इक्वल टू थीटा एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ रेपोज ओके सपोज आई टेक दिस एंगल एज थीटा this angle is theta so that's why this angle is also theta okay जदि हम एटा को डिवाइड करबा कंपोनेंट फॉर्म रे कंपोनेंट फॉर्म में डिवाइड करबा ताले केते आसीबो जेतु mg रो हमें कंपोनेंट बाहर करूचे तार हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट केते आसिला पहले ना mg cos theta mg cos theta तो वर्टिकल कंपोनेंट कोन आसीबो ना वर्टिकल कंपोनेंट विल बी mg sin theta mg sin theta ओके बट जेहेतु ये सरफेस ऊपर बा इंक्लाइन सरफेस ऊपर जो नॉर्मल रिएक्शन आउ कंपोनेंट ऑफ वेट ओके सो दैट विल बैलेंस दैट इक्वल्स टू गिव ए रिलेशन r इक्वल्स टू mg cos थीटा r इक्वल टू mg cos थीटा कहीं आसूचे r इक्वल टू mg cos थीटा जेहेतु आम कहचे ऑब्जेक्ट स्लाइड करूचे इनक्लाइंड प्लेन रे जेहेतु ऑब्जेक्ट स्लाइड करूचे इनक्लाइंड प्लेन रे तने ऑब्जेक्ट रो जो मोशन अछि डाउनवर्ड डायरेक्शन ले अछि ओके जेहेतु डाउनवर्ड डायरेक्शन ले अछि ताले तार जो करेस्पोंडिंग वेक्टर बा फोर्स रो वैल्यू आसीबो मैक्सिमम आसीबो डाउनवर्ड डायरेक्शन रे हला किंतु जेहेतु तार वर्टिकल डायरेक्शन ले किछि मोशन नाही ऑब्जेक्ट हमर वर्टिकल डायरेक्शन ले जेहेतु किछि मोशन करूनी ए डायरेक्शन ले ऑब्जेक्ट रो किछि मोशन नाही ता माने नॉर्मल डायरेक्शन इज इक्वल टू कंपोनेंट ऑफ द वेट ओके सेकंड थिंग देखो पहले मोशन टा को डायरेक्शन ले आसुची ना डाउनवर्ड डायरेक्शन ले जदि मोर मोशन टा डाउनवर्ड डायरेक्शन ले अछि ताले तार जो फ्रिक्शन आसीबो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आसीबो दैट इज द अपोजिट टू द मोशन फ्रिक्शन जो आसीबो अपोजिट टू द मोशन ता माने एटा हम वेक्टर मेजर करूचे f आउ mg रो वैल्यू इक्वल नाही जदि f आउ mg रो वैल्यू इक्वल हे जिवो से ऑब्जेक्ट कोन हे जिवो ना रिजल्टेंट फोर्स ता ऊपर 0 ओके जे तुम कहछ ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन ले स्लाइड करूची सो डेफिनेटली गोटे कंपोनेंट मैक्सिमम अछि किंतु को कंपोनेंट मैक्सिमम जे तुम कहछ ऑब्जेक्ट हम डाउनवर्ड मोशन करूची सो डेफिनेटली जो फोर्स कंपोनेंट अछि mg sin थीटा दैट मस्ट बी ग्रेटर देन दैट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन ओके सो द सेकंड रिलेशन दैट वी कैन ऑब्टेन सिंस the body moves downward direction so mg sin theta must be greater than force of friction mg sin theta must be greater than force of friction ओके ताहले मते एडी मेजर करे ताले रिजल्टेंट फोर्स ऊपर केते अछि हम कहै mg sin theta is greater than limiting friction और force of friction ताले जो रिजल्टेंट बाय एक्स्ट्रा फोर्स आसुची डाउनवर्ड डायरेक्शन ले से एक्स्ट्रा फोर्स रो वैल्यू मेजर करे सो व्हाट इज द नेट फोर्स ओके net force on the body in downward direction
direction, that equals to F. So F equal to greater force minus smaller force, so that equals to mg sin theta minus small f. mg sin theta minus small f. Suppose here we take mu equal to coefficient of friction, mu equal to coefficient of friction. Okay, so if I take mu is the coefficient of kinetic friction, okay, जेहेतु ऑब्जेक्ट हमर मोशन रे अछि, सपोज mu टा हला हमर coefficient of kinetic friction, तले coefficient of kinetic friction रिलेशन कोन ना force of friction divided by normal reaction, force of friction divided by normal reaction. Okay, so that's why the value of force of friction that equal to coefficient of friction into normal reaction. Okay, so use the value here, force that equal to mass into acceleration. Okay, suppose I take a body object's downward acceleration is a. Okay, mass of the body is m, so force equal to mass into acceleration, that equals to mg sin theta minus that value equals to mu r. Okay, so that value equal to mu r. So what is the value of r? So value of r equal to mg cos theta. Okay, so that implies to ma equals to mg sin theta minus mu into mg cos theta. Okay, so divide m on both sides, so that implies to acceleration of the object or downward acceleration, so that will be g sin theta minus mu g cos theta, g sin theta minus mu g cos theta. So that's why a equals to, if you take g common, that is sin theta minus mu cos theta. Okay, so this will be the resultant acceleration of the body in the downward direction. Okay, that is the resultant acceleration, or you can say that is the acceleration of the object in downward direction. In the downward direction. Okay, second thing, if we measure the velocity, okay, velocity of the body when it is reached at the bottom. Okay, जदि मोर ऑब्जेक्ट स्लाइड करबा परे आसी को पोजीशन ले पहुंचुची, बॉटम पोजीशन ले एग्जिस्ट करूची, ताले एई पॉइंट तार वेलोसिटी केते आसीबो, आमे कहले से एक्सेलरेट होची डाउनवर्ड डायरेक्शन ले, जेतु डाउनवर्ड डायरेक्शन ले एक्सेलरेट होची ता माने डेफिनेटली से कोठी हॉरिजॉन्टल प्लेन रे आसी पहुंचबो, जदि हॉरिजॉन्टल प्लेन ले पहुंचुची सेट तार वेलोसिटी केते आसीबो. ओके, सेटा मेजर करे. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एट द बॉटम ऑफ द प्लेन. ओके, velocity of the body at the bottom of the plane. ओके, देख पे जदि मोर बॉडीटा स्लाइड कर इनक्लाइंड प्लेन रे, एंड आफ्टर स्लाइडिंग व्हेन इट रीच एट द बॉटम पोजीशन ऑफ द प्लेन. Okay, then what is the value of velocity? So in order to measure the velocity, we know the relation. There is a relation between acceleration and velocity. Okay, that we can say acceleration equal to velocity divided by time. Acceleration value हमें कहते कहूचे ना velocity divided by time. Suppose जो ऑब्जेक्ट हमर स्लाइड होउची, जो ऑब्जेक्ट हमर स्लाइड होउची से ऑब्जेक्ट केते डिस्टेंस कवर करूची, माने कर से जो डिस्टेंस ता कवर करूची बा तार जो डिस्प्लेसमेंट एग्जिस्ट करूची, सपोज द डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू l. ओके, लेट द डिस्प्लेसमेंट s इक्वल टू l.
ओके टोटल जो स्लाइडिंग लेंथ कवर करुचे ऑब्जेक्ट से स्लाइडिंग लेंथ रा कमे कहले एल ओके एन वन थिंग जदि मोर ऑब्जेक्टटा इक्विलिब्रियम पोजिशन बा रेस्ट पोजिशन मूवमेंट करुचे स्लाइड करुचे जिते गोटे रेस्ट पोजिशन ताल तार इनिशियल वेलोसिटी सेठी केते थिबो जेहेतु ऑब्जेक्टटा स्लाइड कर गोटे रेस्ट पोजिशन रु तार इनिशियल वेलोसिटी आसीजिवो 0 कैन इनिशियली से ऑब्जेक्टटा इनक्लाइंड सरफेस रे रेस्ट थिला ओके जेहेतु इनिशियल वेलोसिटी ताले केते नै जिबा इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 0 ओके कौन मेजर करबा ना फाइनल वेलोसिटी केते थिबो फाइनल वेलोसिटी मेजर करबा जे ऑब्जेक्टर फाइनल वेलोसिटी केते आसुची ओके जो एक्सेलरेशन लो वैल्यू हमें मेजर कले एक्सेलरेशन लो वैल्यू तुम केते पाइलो a इक्वल टू सो व्हाट इज द एक्सेलरेशन a इक्वल टू g टाइम्स sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा देखो बोले यहाँ आम बाहर कले एक्सेलरेशन वैल्यू ताले आम पाखे कौन डाटा अच्छी आम कहे आम पाखे डिस्प्लेसमेंट अच्छी इनिशियल वेलोसिटी अच्छी फाइनल वेलोसिटी अच्छी आउ एक्सेलरेशन अच्छी ओके ये जो चार्टा डाटा अच्छी डाटा को यूज करबा हमें कोठी ना काइनेटिक थ्योरी इक्वेशन रे बा जेटा हमें कहे इक्वेशन ऑफ मोशन काइनेटिक्स इक्वेशन ऑफ मोशन सो काइनेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन कौन कहूची सो इफ यू मेजर एज पर काइनेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ मोशन ओके कौन रिलेशन नबा v u a आउ s भीतर जो करेस्पोंडिंग रिलेशन आसुची से रिलेशन हमर केते हला v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as सो दैट इक्वल्स टू v स्क्वायर इक्वल टू u रो वैल्यू केते अछि पिले ना 0 इक्वल टू 2 एस रो वैल्यू हमें नहीं एल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट ओके एक्सेलरेशन जो कंपोनेंट पाइलो एक्सेलरेशन वैल्यू केते आसिला ना g इनटू sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा ओके सो दैट implies to velocity v equal to under root over 2lg sin theta minus mu cos theta. So this will give the value of corresponding velocity while sliding in an inclined surface. Okay. Second, third factor measure करें. What is the time taken by the object to reach at the bottom of the plane? Okay. Velocity पाइलो, acceleration भी measure कर ले. अबे देखिए कितने time लगियो से object को जब से certain length l distance cover करूची v velocity रे. ओके तेने केते टाइम लागिवो ताको पहुंचवा पई हॉरिजॉन्टल प्लेन रे ओके थर्ड कंपोनेंट मेजर करबा थर्ड कंपोनेंट दैट इज टाइम टेकन बाय ए बॉडी टू रीच bottom of the plane to reach bottom of the plane ओके सो टाइम फैक्टर को मेजर करने को हेले देख हम पाखे डाटा कौन कौन अच्छी आम कहले जो डिस्प्लेसमेंट रो वैल्यू आसूची डिस्प्लेसमेंट केते पाइलो डिस्प्लेसमेंट केते नेले s इक्वल टू सपोज लेंथ l ओके सेकंड थिंग एक्सेलरेशन वैल्यू केते पाइलो a इक्वल टू g इनटू sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा एटा पाइले कहार वैल्यू एक्सेलरेशन वैल्यू सेकंड थिंग वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी केते नेलो 0 इनिशियल वेलोसिटी हला 0 कोन मेजर करबा ना टाइम ऑफ मूवमेंट ओके सो टू मेजर द टाइम ऑफ मूवमेंट वी कैन यूज द रिलेशन दैट इक्वल टू अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ मोशन according to equation of motion s equal to ut plus half
at square. That is one of the kinetic equation of motion. S equal to ut plus half at square. Okay. So what is the value of S? L, that equals to u equals to 0. So 0 into t plus half at square. Okay. So that implies to L equal to केते पाइल पिले हाफ at square. कहार वैल्यू मेजर करवा टाइम ऑफ मूवमेंट. जब हम टाइम ऑफ मूवमेंट को मेजर करवा ताले केते आसिला t square equal to 2L divided by a. Okay, so that implies to t square equal to 2L divided by a रो वैल्यू केते अछि ना g into sin theta minus mu cos theta. Sin theta minus mu cos theta. So t equals to 2L divided by g into sin theta minus mu cos theta under root. Okay, so this will give the value of time of movement to cover the inclined surface. Okay, एबे देखिबा कोन आमे कहूचे जो फ्रिक्शन फैक्टरटा कहूचे फ्रिक्शन फैक्टर इज मेनली कॉल्ड ए नेसेसरी इविल. Friction is a necessary evil. So why this statement is like this? First thing हम friction is necessary. Okay, friction is necessary. Why friction is necessary? So because of the value of friction we can easily work on the floor. जो फ्रिक्शन एक्जिस्ट करुच्ची आम इजिली वर्क करें ना कौन से फ्लोर उपर आम इजिली वर्क करें ना ना जब फ्रिक्शन वैल्यू लेस हो फॉर एग्जांपल जब आम फ्लोर उपर किसी फ्रिक्शन रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन मनकर आम ऑयल वैक्स मोबिल यही टाइप किसी ऑब्जेक्ट आम यूज करवा दिस आर कॉल्ड फ्रिक्शन रिड्यूसिंग एजेंट. जब आम फ्लोर उपर किसी ऑयल प्लेस करते ऑयल किसी पकई दौचे जो से ऑयल उपर आम पाद पड़ जाऊँगी से कौन होना आम मोशनटा इनक्रीज करुच्ची मोशनटा इनक्रीज करुच्ची आ फ्रिक्शन वैल्यू डिक्रीज कर जाऊँगी. ओके ताल डेफिनेटली आम गोटे स्टेटमेंट ये पाइबा जब आम फ्रिक्शन वैल्यू को लेस करवा ताले मोशन वैल्यू इनक्रीज आसो. ओके ताले जब आम जो फ्लोर उपरे चलुचे जदि से फ्लोर उपरे हमर फ्रिक्शन वैल्यू स्मॉल आसीबो तले हम ईच स्टेप रे कोन हेबा ना सेडी फॉल डाउन होबा बारंबार हम से फ्लोर उपरे पड़ी जिबा. सो फ्रिक्शन फर्स्ट थिंग व्हेन वन नेसेसरी थिंग दैट इज विथ द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन वी कैन इजीली वर्क ऑन द फ्लोर. ओके सेकंड थिंग जो पिला मन पढुछ बा मोर जो चॉकटा जो यूज करूची देखो बोर्ड रे लेखिया पई हेले मते चॉक को कोन करिया पडुची ना फ्रिक्शन करिया पई पडुची. जदि मोर ऑब्जेक्ट रो जो फ्रिक्शन वैल्यूटा स्मॉल जदि ऑब्जेक्टा को पूरा प्लेन नहीं जावा. ओके जब आम प्लेन सरफेस नहीं जावा ताले जो बोर्ड उपर हम जो चॉकटा को राइट करवा से चॉकर जो लेखा मु क्लियरली विजिबल हेबो नाही. ओके सो यूज द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन वी कैन इजीली राइट ऑन द बोर्ड. ओके वन थिंग आ गोटे मेजर थिंग नहीं वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन पे आम पेन को इजीली होल्ड कर पारुचे हैंड रे फ्रिक्शन अच्छी बोली आम पेन को कौन कर पारुचे ना इजीली एग्जिस्ट कर पारुचे कहा देहरे फिंगर देहरे. सो दिस आर द नेसेसरी थिंग दैट वी कैन यूज इन केस ऑफ फ्रिक्शन. सो व्हाई इट इज कॉल्ड इविल व्हाट इज मेन द डिसएडवांटेजेस. The main disadvantages we can say because of friction we lost the energy. ओके फ्रिक्शन पे आम कौन करुचे एनर्जी लॉस कर. गोटे एग्जांपल देवी जो तुम मन कर सकाल क्लास 10 समस्त साइकिल नहीं ट्यूशन जाऊच. ओके जो साइकिल नहीं ट्यूशन जाऊच मन कर से साइकिल बॉल बेरिंग तुम कौन हो जाए ना रस्ट हो जाए. ओके जब आम से बॉल गुड़ा को रस्ट बॉल बा साइकिल जो बॉल गुड़ा नस्ट हो जाए तुम से जो अप्लाइड फोर्स दबा पड़ो. ओके जो अप्लाइड फोर्स दबा पड़ो से फ्रिक्शन एगेन्स्ट रे से फोर्स कौन हम ना मैक्सिमम. ओके जब आम कहीपर से मोर जो एनर्जी लॉस है से राइडर पर जो एनर्जी लॉस है से मैक्सिमम फोर्स ताको दबा पड़ा कौटी ना साइकिल केस रे. ओके ताने फ्रिक्शन जदि मोर लार्ज आसीबो ताले मोर मैक्सिमम एनर्जी लॉस आसीबो. ओके सो बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन देयर विल बी लॉस ऑफ एनर्जी. ओके अनदर थिंग वी कैन से फ्रिक्शन ऑलवेज
takes wear and tear associated with the friction. Okay, there is always wear and tear associated with the friction, means we can say there is always the loss of energy takes place because of the frictional object. Okay, so these are the main points that we take, that we say that is friction is a necessary evil. Another things we can say, how can we reduce the value of friction. So value of friction को हमें reduce केमती करवा, हमें कुछ value of friction को reduce करवा पाई किसी friction reducing agent जोड़ा हमें कही परिवा oil, मोबिल, wax, okay, paraffin एगुड़ा हमें यूज करी परिवा. Okay, these are called friction reducing agents. Okay, आ गुटे थिंग्स हमें नहीं परिवा जदि हमें सरफेस को परफेक्टली पॉलिश कर दवा, जदि मोर सरफेसटा परफेक्टली पॉलिश अच्छी ताले से सरफेस ऊपर हम कौन आसीबो ना फ्रिक्शन लो वैल्यू लेस आसीबो. ओके, फ्रिक्शन लो वैल्यू लेस आसीबो. तेणु हम कहि पारे देयर आर टू मेन मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन वैल्यू. सो फर्स्ट मेथड वी कैन से बाय पॉलिशिंग ए सरफेस वी कैन रिड्यूस द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन. सेकंड थिंग वी कैन यूज द लुब्रिकेंट्स. ओके, वी कैन यूज द लुब्रिकेंट्स इन ऑर्डर टू रिड्यूस द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन. ओके, लुब्रिकेंट्स तो नहीं पारिबो ऑयल, मोबिल, वैक्स, paraffin. So these are the lubricant oils that we use to suppress or reduce the value of friction. Okay, so this is all about the friction chapter. Okay, so in next class we will discuss some of the problems and short questions basing on the friction and laws of motion. Okay, thank you.